Good morning students. In this video we have discussed about the adjustment of old partners capital account on the basis of new partners capital. Sometime on the adjustment of new partners it is decided that the capital of old partner will be adjusted on the old partners on the basis of new partners capital account to make them proportionate to their share profit. In such question, first of all, in the entire amount capital of the new firm should be determined on the basis of new partners capital. Then the capital of each partner is ascertained by dividing the total capital according to this profit share ratio. If the guy is getting capital of any partners is the excess of the newly calculated capital, the excess amount will either paid off immediately or credited to his current account. There is some entries old partners capital account debit to bank account or partners current account. If the is getting capital of any partners less than newly calculated capital, bank account debit or partners current account debit to old partners capital account. Let's here see the illustration. The following is the balance sheet of ABC sharing profit ratio is in profession 653 respectively. लायबिलिटी देखें, क्रेडिटर्स हैं हमारे, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स है, जनरल रिजर्व है एंड पार्टनर्स की कैपिटल है. ठीक, इस पर आते हैं एसेट साइड में. कैश, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, there are some adjustment. They agree to take D into partnership and given him 1/8 share on the following terms. That furniture be depreciated by 2920 and old customers whose account was written off as bad has promised to pay 2000 in full settlement of his full debt. That a provision of 1320 made for outstanding repair bills. Fourth, that the value of land and building having appreciated be bought up to 5,690,910. Fifth, the D should bring in 14,700 on his capital and D should bring his 40,070 rupees on share of goodwill. Last, that after making the above adjustment, the capital account of old partners be adjusted on the basis of proportionate D's capital on
his share in business, actual cash to be paid off or bought in by the old partners as case may be. देखिए आपको क्या क्या करना है यहाँ पे, pass the necessary journal entry and prepare the balance sheet of a new firm. First we have pass the journal entries. जो हमारा जनरल रिजर्व है उसको हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू partners capital A, B, C, and here is total amount of 10,000, 1,500, 500. Then it is distributed according to old share ratio. अब आते हैं हम लोग फर्नीचर रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, फर्नीचर में हमें लॉस हुआ है, तो देखें to revaluation account debit to furniture account to provision for repair account. और डेप्टर्स हैं, ये हमारी कुछ इंक्रीजमेंट हुई है क्या, मतलब कि वह फुली बैड डेप्ट था लेकिन उसने कहा कि भैया हम पैसा वापस करेंगे, दैट्स ए इनकम. हाँ, तो डेप्टर्स अकाउंट डेबिट एंड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं. वैसे अब हम लोग आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखें तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें प्रॉफिट हुआ है, डेप्टर्स पे भी प्रॉफिट हुआ है, और जो हमारे खर्चे रहे हैं फर्नीचर और प्रोविजन फॉर रिपेयर, अब इन दोनों को हम लेस कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर आते हैं हम लोग जनरल एंट्री की तरफ. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल. और इसके बाद से बुक में गुडविल है, ठीक है, 5,250 से, इसको पार्टनर्स निकाल लेंगे, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, तो हो जाएगा एच कैपिटल बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट. तो अब यहाँ पे हम उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. अब फिर आती है बात, हमारा डी एडमिशन ले रहा है, तो अपने साथ साथ क्या ला रहा है, कैश और गुडविल. कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो डी ने दोनों जो भी चीज़ें लाई हैं, कैश और गुडविल, दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर. फिर बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो उसने लाया है वह उसी के रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में वह हम अपने ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे. डी ने जो गुडविल लाया है, ठीक है. अब आते हैं हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ. कैपिटल अकाउंट में देखें तो क्रेडिट, बात करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड की. टू बैलेंस बीडी, जो उनका पिछला बैलेंस रहा है बैलेंस शीट में, और जनरल रिजर्व जो उनको अभी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है. यहाँ से ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी ये पा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. बाय कैश, हमारा जो डी है वह कैश ला रहा है ना, और उसने
जो गुडविल लाया है वह हम अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर्स में। अब जो पुराना गुडविल था वह हमारे ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल लिया, उसको बुलाएंगे टू गुडविल अकाउंट इन द डेबिट साइड में, और सबका यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स की बात करें, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो टू बी कैलकुलेटेड एज अंडर फॉलोज। शेयर गिवन टू डी 1/8, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 7/8। ए का न्यू शेयर रेशियो हो जाएगा 7/8 इंटू 6/14, ये इनका पुराना रेशियो था, दैट्स वी गॉट 3/8। उसी प्रकार हम सबका कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास न्यू रेशियो 6/5/3/2, ये मिल जाएगा न्यू रेशियो। अब जो कह रहा है कि डी ब्रिंग इन 14,700 एज कैपिटल अकॉर्डिंग टू शेयर इतना, देयरफॉर टोटल कैपिटल 1,17,600 है ना। अब हम जो है कि चारों पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर लें। टोटल जो हमें कैपिटल मिल गई है तो यहाँ पे हमारी जो है कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में मिला हुआ है। अब निकालते हैं हम लोग। एच की कैपिटल आ जाएगी 44,100, बी की कैपिटल आ जाएगी 36,750, सी भी कैपिटल आ जाएगी, और डी ने तो अपने कैपिटल लाया ही है। आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखिए हमारी हो जाएगी यहाँ पे टू बैलेंस सी डी करके 44,100, 36,750 एंड 22,050। अब इसमें जो भी कोई कमी पड़ेगा या अधिक पड़ेगा वह निकाला जाएगा, और जो अधिक होगा तो वह निकाला जाएगा और कम होगा तो लाया जाएगा। चलिए देखते हैं। जबकि हमारा पुराना बैलेंस कितना है ओल्ड पार्टनर्स का, ए का है 47,760, और जबकि सर कितना आ रहा है 44,100, यहाँ पे एक्सेस है तो वह निकाल लेगा। ठीक उसी प्रकार बी भी करेगा, उसकी एक्सेस अमाउंट है वह निकाल लेगा। लेकिन बात करें सी की, तो सी की देखिए हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 20,000 और 20,730, जबकि उसकी कितनी होनी चाहिए 20,050। तो अब वह क्या करेगा, कैश और लेके आएगा। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे की बात करें हम लोग क्रेडिट साइड की, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, ये सब हमारे लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, और हमारे चारों पार्टनर्स के कैपिटल। बात करें अब कैश अकाउंट एसेट साइड में कैश की, तो कैश में जो हमारा पार्टनर्स रहा है ना, उसकी थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट देख लें। आइए यहाँ पर वर्किंग नोट्स में नोट नंबर 1, एज कैपिटल इन न्यू फर्म शुड बी अपीयर कैपिटल शुड बी इतना, देयरफॉर द एक्सेस कैपिटल विल बी रिटर्नेड टू हिम, मतलब उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार बी का भी एक्सेस था तो उसको भी, बी को भी हम रिफंड कर देंगे, क्योंकि सी का कम था तो सी लेके आएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कैश की। कैलकुलेशन ऑन द कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस रहा है 1,890, डी के द्वारा लाया गया, तो दोनों हम जोड़ देंगे। उसकी गुडविल और कैश को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 28,770, और सी जो है वो भी
कैश ला रहा है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। जबकि हम ए और बी को रिफंड कर रहे हैं तो हम उसको लेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कैश का बैलेंस 24,920। डेप्टर्स हैं, डेप्टर्स भी हमारे 2,000 अच्छे बढ़ गए, तो हम यहाँ कि 2,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 28,000। स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इन सब में हमारी जो भी ट्रीटमेंट हुई है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीजमेंट हुई है, स्टॉक और फर्नीचर में डिप्रिसिएट हुई है।